Welcome to students. Up till now we discussed about phylum Porifera, phylum Nidaria, and this is one step ahead, phylum Ctenophora. These members are commonly called as comb jellies. And another name for this animal is sea walnut. They're also called as sea walnuts. ठीक है, ये नाम आपने याद रखना है. They are comb jellies as well as sea walnuts, and they are found always in marine water. They are exclusively marine animals. It means that they are never found in fresh water bodies like river, lake, ponds. Okay, they're always found in marine water. That is their superb habitat. These animals are free living, और वी कैन से फ्री स्विमिंग एनिमल्स. ठीक है, ये एनिमल्स सीडेंटरी नहीं होते हैं, जैसे हमने कहा था ऑलरेडी कि इससे पहले वाले फाइलम में जहाँ पे हमने देखा था हाइड्रा, ठीक है, सी एनिमोन्स, दे आर मोस्टली सीडेंटरी. दे गेट अटैच देमसेल्फ टू एनी सबस्ट्रेटम इन वाटर बॉडीज, बट दीज आर फ्री लिविंग और वी कैन से फ्री स्विमिंग एनिमल्स. राइट. These animals are diploblastic. These animals are diploblastic means they are made up of two germ layers. During embryology, we may found two different layers, endoderm and ectoderm, while mesoderm is completely missing. There is, we can say, only two distinct layers, endoderm and ectoderm. That's how they are diploblastic animals, and these two germ layers produces entire body parts. And all those structures are found in the form of tissues. We know that in Porifera there is only cells, cellular organization is there, but in Nidaria we found some tissues are formed there. Similarly, right here there is tissue grade organization. Tissue grade organization is seen in case of Ctenophora, right? Very important. They show radial body symmetry. They are radially symmetrical animals. ठीक है, जैसे कि हमने कहा था आपको कि इससे पहले वाले जो टेनोफोरा, ये टेनोफोरा जो मेंबर्स है, ये रिसेंबल करते हैं टू प्रीवियस निटारियंस इन दिस पर्टिकुलर रिस्पेक्ट. डिप्लोब्लास्टिक भी होते हैं, सेम है, और रेडियल सिमेट्री भी दिखाते हैं, ये भी उससे सिमिलर है. सो वी मे कंपेयर टेनोफोरा विद निजारिया ऑफ कोर्स, बट these animals are strikingly different, okay, with respect to some special characters which we will see right here. But some similar features let's discuss first. Tissue grade organization यहाँ पे मिलेगा, रेडियल सिमेट्री आपको यहाँ पे मिलेगी, और ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान यहाँ पे मिलेगा, because they have only one aperture which is common for entry and exit of substances into the body, right? एक ही ओपनिंग है, वही काम करेगा एज अ माउथ, एज एन एनस, राइट? तो आप कह सकते हो कि बॉडी प्लान किस टाइप का है, ब्लाइंड सैक टाइप का बॉडी प्लान इनमें होता है. ठीक है, ये एनिमल्स की एक खास आप कह सकते हो स्ट्रक्चरल फीचर जो है वो है 8 rows ऑफ कोम प्लेट्स. ठीक है ना, जिससे कि लोकोमोशन करते हैं. सो देयर लोकोमोशन ऑकर्स by 8 rows of comb plates, and that's how they are called comb jellies. इनको comb jellies क्यों कहा गया है? क्योंकि इनके पास होते हैं 8 rows of comb plates. That's how they locomote. Very important. तो आप देख सकते हो इन एनिमल्स में कुछ अपने स्पेशल फीचर्स हैं, और उसमें से एक है bioluminescence, right? Bioluminescence, that is their special feature. So these animals shows phenomena of bioluminescence. So what is this bioluminescence? इसका क्या मतलब हो सकता है, ये हमें समझना है. ठीक है, तो बहुत सारे एनिमल्स में ये एबिलिटी हो सकती है, और वो इस मेंबर इस फाइलम के मेंबर्स होते हैं, राइट? बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब है टू एमिट light
फ्रॉम देयर बॉडी, ठीक है, उनके बॉडी से लाइट इमिट होता है। तो ये बहुत ही स्ट्राइकिंग फीचर है, दैट इज इमिट लाइट फ्रॉम द बॉडी। So bioluminescence is extraordinary feature of these animals. They show intracellular as well as extracellular as well as extracellular digestion like that of earlier phylum we studied, that is Natarvians. Okay, that is very important right here. These animals reproduce by sexual method. इनका जो रिप्रोडक्शन होता है ये सेक्सुअल मेथड से होता है, राइट। वो गैमेट्स बनाते हैं, स्पर्म और एग, और फ्यूज़ होकर नया लाइफ मिलेगा, तो रिप्रोडक्शन सेक्सुअल कहलाता है ऑफ कोर्स थ्रू गैमेट्स। और इनका जो डेवलपमेंट होता है ये लार्वल स्टेजेस की वजह से इनडायरेक्ट कहा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, इट मीन्स दे शो लार्वल स्टेजेस इन देयर लाइफ साइकिल, राइट। तो आपने देखा कि इनमें खास स्पेशल फीचर क्या है, दे इमिट लाइट फ्रॉम देयर बॉडी, उनके बॉडी से लाइट इमिट होता है, इसको आपने बायोल्यूमिनेसेंस कहना है। इसी तरह इनका जो डाइजेशन है ये इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों टाइप का हो सकता है, ठीक है। अगर फूड कंटेंट ये सेल के बाहर ही एंजाइम्स थ्रू डाइजेस्ट हो जाए तो एक्स्ट्रा सेलुलर हो जाएगा, और अगर वो सारा कंटेंट सेल के अंदर, ठीक है, एंजाइम्स की हेल्प से सेल के अंदर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में डाइजेस्ट होगा तो फिर वो इंट्रासेलुलर कहलाएगा। दोनों टाइप का डाइजेशन यहाँ होता है, और इसी तरह का कैटेगरी हमने ऑलरेडी समझ लिया था इन अर्लियर फाइलम, ओके। बट यहाँ पे बायोल्यूमिनेसेंस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और यहाँ पे रिप्रोडक्शन सेक्सुअल मेथड से होता है, राइट। और इनका डेवलपमेंट ये लार्वल स्टेजेस थ्रू होता है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, राइट। इससे पहले जो हमने फाइलम पढ़ा था निडारिया, उसी से हम इसको कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे हमने कुछ खास सेल्स देखे थे जिसको निडोब्लास्ट कहा था, ठीक है। तो यहाँ पे निडोब्लास्ट एब्सेंट होते हैं, एब्सेंस ऑफ निडोब्लास्ट हेंस कॉल्ड, इसीलिए आप इनको नाम दे सकते हो, ठीक है। देखिए नाम क्या देना है, ए निडो या फिर ए निडारियस। They are anidarians. It means that they do not bear nidoblast or nidocytes. वो जो स्टिंगिंग सेल्स थे, सबसे स्पेशल फीचर जो हाइड्रा जैसे एनिमल्स में हमें मिलता है, ठीक है, वो यहाँ पे आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, इसलिए इन एनिमल्स को नाम दिया है एनिडारियंस, ओके। फिर इनमें क्या होता है, तो इनके पास कुछ अलग टाइप के सेल्स आपको मिलेंगे, इन सेल्स को प्रेजेंस ऑफ सेलोब्लास्ट, दीज आर एक्चुअली द स्टिकी सेल्स। इनमें आपको क्या मिलता है, स्टिकी सेल्स टू कैप्चर द प्रे, ओके, टू कैप्चर देयर प्रे। तो आपने देखा कि इन एनिमल्स की स्पेशलिटी क्या है, इन एनिमल्स में बायोल्यूमिनेसेंस है, इनके पास 8 कोम प्लेट्स होते हैं फॉर लोकोमोशन, इन एनिमल्स में रेडियल सिमेट्री होता है, ये सिर्फ मरीन वाटर बॉडीज़ में मिलते हैं, ओके। और यहाँ पे आप देख रहे हो इनके पास निडोब्लास्ट पूरी तरह एब्सेंस है, राइट। इंस्टेड दे शो प्रेजेंस ऑफ सेलोब्लास्ट, these are sticky cells, okay, and these sticky cells are going to capture their prey with the help of that sticky substance present on them. तो बहुत ही पावरफुल सेल्स इनके पास आपको मिलेंगे जिनका नाम है सेलोब्लास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। हियर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आर Pleurobrachia and Ctenoplana. These two examples are very common and represent entire phylum of Ctenophora, right? तो इसको फटाफट रिकैप कर लेते हैं एक बार, इंपॉर्टेंट फीचर्स जो इस फाइलम के। तो ये जो फाइलम है लिटिल बिट आप कह सकते हो थोड़ा बहुत एडवांसमेंट में आता है कंपेयर टू अर्लियर डिस्कस्ड फाइलम, बट इसके कुछ स्ट्राइकिंग फीचर्स ही आपको याद रखने, अदरवाइज यू हैव टू सिंपली कंपेयर विद अर्लियर फाइलम निटारिया, ओके। इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये पूरी तरह
मरीन वाटर में मिलते हैं. These are exclusively marine animals, right? And these animals are commonly called as comb jellies. इसको हमने नाम दिया है comb jellies या फिर sea walnuts. ठीक है. इन एनिमल्स में 2 जर्मलेस मिलेंगे, इसलिए आपने इसको कहना है डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स. दे आर फ्री लिविंग एनिमल्स और ये सिलेंडरी वगैरह नहीं होते हैं. ठीक है, जैसे कि अर्लियर फाइलम में आपको मिल सकते हैं. बट इन एनिमल्स की स्पेशलिटी जो हमने कही, ये रेडियल सिमेट्री दिखाते हैं. ठीक है, इन एनिमल्स में एक ही ओपनिंग होता है, इसलिए ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान को ही बिलोंग करते हैं. इन एनिमल्स में आपने देखा कि बायोल्यूमिनेसेंस का पावर है. ओके, दैट इज़ दे इमिट लाइट फ्रॉम द बॉडी. दैट इज़ एक्स्ट्रॉर्डनरी पोटेंशियल ऑफ दिस एनिमल्स. ओके, बहुत ही सुपर कैरेक्टर है बायोल्यूमिनेसेंस, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, यू शुड हाईलाइट दिस फीचर. इसी के साथ साथ इन एनिमल्स में होते हैं 8 रोज ऑफ कोम्ब प्लेट्स एंड दैट इज़ टू हेल्प इन लोकोमोशन प्रोसेस. ठीक है, तो ये भी इनका बहुत स्ट्राइकिंग फीचर है. दैट्स ऑफ द नेम कोम्ब जेलीज, इसीलिए तो उसको नाम दिया है. ठीक है ना, वो भी आपने याद रखना है. इनका जो रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल मेथड से होता है. लार्वल स्टेजेस में डेवलपमेंट है, इसलिए इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ये आप कह सकते हो कि शो करते हैं. इन एनिमल्स में हमने देखा कि जो फीचर्स है अदर, वो पूरी तरह रिसेंबल करते हैं टू दैट ऑफ अर्लियर फाइलम. बट यहाँ पे सबसे स्पेशल फीचर जो है निडारियंस का, वो मिसिंग है. इट मीन्स दे डू नॉट शो निडोप्लास्ट. दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एनिडार्वियंस. बट इंस्टेड दे शो सेलोब्लास्ट, and celloblast are sticky cells which are going to help in capturing their prey. ठीक है, तो इसके जो आइडियल एग्जांपल्स है वो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं. दैट इज प्लूरोब्राकिया एंड टेनोप्लाना. ठीक है, सो होप यू गेट आइडिया अबाउट स्मॉल ब्रीफ फाइलम बट इम्पॉर्टेंट वन, टेनोफोरा. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग.